Good morning, student. We already discussed about the preparation of soil. Now today our topic is agricultural implements. So what is inside the agricultural implement? Have a look. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yields. सॉइल क्लम्प्स का मतलब होता है जो सॉइल के बड़े टुकड़े होते हैं या फिर हम उसको हिंदी में ढिल्ले भी कहते हैं। तो उसको पहले टूल्स की हेल्प से उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पीस में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, और ऐसा सिर्फ कुछ टूल्स की मदद से कर सकते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लॉ, hoe and cultivator. Now first is plow. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and it is drawn by a pair of bulls or other animals like horse and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. प्लो आप सभी ने देखा होगा और बहुत समय पहले से ये यूज़ होता आ रहा है। ये लकड़ी का या फिर आयरन का हो सकता है। ये बहुत लंबा होता है और आपने जैसे खेतों में जब किसान वर्क करते हैं तो दो बैलों के कंधों पे जो रखा रहता है लकड़ी का जो एक डिवाइस है, टूल है, उसे हम प्लॉ कहते हैं। और इसका काम आपको पता है ये क्या है, करता है? सॉइल को उलट पुलट करने के काम आता है, वीड्स को हटाने के काम आता है, और एडिंग फर्टिलाइज़र और मैन्योर को डालने के बाद फिर उसके ऊपर इस प्लॉ को चलाया जाता है। तो उससे हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाती है। Now next is hoe, H-O-E. It is a simple tool which is used for removing weeds for losing the soil. ये बिल्कुल एक सिंपल सा एक टूल है जो कि क्या करता है, रिमूव करता है वीड को और सॉइल को लूज करता है। उससे हम क्या करते हैं, सॉइल को खोद सकते हैं। It has a long rod of wood or iron. It has a long rod. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by a animal. You can see a figure how this hoe look like. Now next is cultivator. Nowadays ploughing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. You can see the figure. There is a cultivator. आप सबों ने देखा भी होगा जो ट्रैक्टर रहता है, जब भी खेत पे जब वो वर्क करता है तो उसके पीछे एक कल्टीवेटर लगा रहता है। कल्टीवेटर का काम क्या रहता है, पूरी जो मिट्टी है उसको उलट पुलट कर देना। Then sowing. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yield. सोइंग का मतलब मैंने आपको बताया था। उसमें सोइंग का मतलब होता है मिट्टी में बीजों को लगा देना। लेकिन ऐसा करने से पहले, बीजों को लगाने से पहले उसको हम चेक करते हैं कि कौन सा बीज जो है अच्छा है, कौन सा बीज खराब है। तो इसकी एक प्रोसेस होती है। उसको पानी में डालते हैं तो जो खराब बीज रहते हैं वो ऊपर फ्लोट करने रहते हैं और जो अच्छे बीज रहते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं।
जो वो अच्छे बीज हैं सिर्फ उन्हीं बीजों को लगाया जाता है, बाकी जो खराब बीज हैं उसको या तो फेंक दिया जाता है या फिर चिड़िया या किसी भी जानवर को खिला दिया जाता है। नाउ ट्रेडिशनल टूल्स, जो पुराने जमाने में जो टूल्स यूज होते थे उन्हें हम ट्रेडिशनल टूल्स कहते हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. Now next is seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seed get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. जो सीड ड्रिल है अब तो क्या है ट्रैक्टर से होने लग गई है, नहीं तो पहले क्या है, पहले हाथ से ही बीजों को डाला जाता था और फिर एक इंसान डालता था और दूसरा इंसान उसको कवर करता था। और अगर हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं होते थे तो एक ही इंसान पहले पूरे बीजों को पूरे खेत में डाल देता था और उसके बाद फिर वो कवर करता था। लेकिन इतनी देर में क्या होता था, बर्ड्स जो रहती थी, बर्ड्स आके कभी कभी उन सीड्स को खा लिया करती थी। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम यहाँ पे अब ट्रैक्टर से सीड्स को डाला जाता है, जिसे हम सीड ड्रिल भी कहते हैं। और इसमें जो ट्रैक्टर रहता है वो यूनिफॉर्मली जो है सॉइल को खोदती भी है, उसमें बीज को भी डालती है और साथ ही साथ उसको उस जो खोदा हुआ जो गड्ढा रहता है उसको भर भी देती है। तो ये सारे काम एक ही बार में ये पूरी मशीन कर देती है। You can see in figure that seed drill किस तरीके का होता है, आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपके घर के पास नर्सरी है तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो प्लांट्स है वो एक ब्लैक कलर के छोटे छोटे बैग्स में लगे हुए रहते हैं। तो कुछ प्लांट्स को इसी तरीके से लगाया जाता है और फिर उसको किसी खेत में जाके फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसको फिर से लगा दिया जाता है। पहले उसको थोड़ा उगाने के लिए छोटे छोटे बैग्स में लगाया जाता है। प्लांट को अलग से छोटे से बैग में उगाने की प्रोसेस को ही सीडलिंग कहते हैं। ठीक है, सीड को उगाना, सीडलिंग। You know that appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. Plants may have to be removed to prevent overcrowding. हम जब भी बीज लगाते हैं तो बीज को दूर दूर लगाया जाता है ताकि उन बीजों पर सफिशिएंट सनलाइट्स उनको मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वाटर मिल सके। तो इसीलिए इनको दूर दूर लगाया जाता है। अगर ये पास पास भी हो जाते हैं बीज तो फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है दूर दूर। You should know why we add manure and fertilizer. So, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizer. जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस का काम करते हैं जो कि सॉइल के लिए। तो इसको मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप वहाँ पे बहुत सारे फार्म्स को देखते हैं, खेतों को देखते हैं। तो किसी खेत की जो फसलें रहती है वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी दिखती है, तो और किसी की वीक दिखती है। तो वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, उनको मिनरल्स मिलते हैं सॉइल में, वो भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। हमें क्या देना पड़ता है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ता है ग्रोथ के लिए।
Soil supplies mineral nutrients to the crop's plant. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncutted or fallow. Imagine what happened to the nutrients. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmer dumps plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. हम जानते हैं कि जो सॉइल रहती है वो क्या मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। लेकिन जब हम क्या होता है जब ये बार बार फसलें लगाते हैं एक के बाद एक, तो जो सॉइल होती है उसका न्यूट्रिशंस और मिनरल्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये कम हो जाते हैं क्योंकि हम बार बार कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करते जाते हैं क्रॉप्स में। तो इसका एक जब न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं तो वो पुअर रिजल्ट देने लगती है। जो फार्म है वो पुअर रिजल्ट देता है, जो फील्ड है उसमें अच्छे से फसल नहीं आती है। तब क्या होता है, तब जो फार्मर है उसको मैन्योर्स को ऐड करना पड़ता है। अब ये मैन्योर क्या होता है? जो मैन्योर होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स रहते हैं, उसको एक गड्ढे में भर दिया जाता है और उसको कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे ही तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और कुछ महीनों में वो फिर से बहुत ही अच्छी मैन्योर क्रिएट हो जाती है, खाद क्रिएट हो जाती है। तो फिर इसको खेतों में डाल दिया जाता है, इसको खेतों में छिड़क दिया जाता है, जिससे फिर से ये जो खेत हैं, जो खेत की मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। चलिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, मूंग और ग्राम सीड्स को हम ग्राम सीड की हम सीडलिंग करेंगे, उगाएंगे मतलब इसे। लेकिन हम इसमें एक थोड़ा सा ये चेंज करेंगे कि हम 3 ग्लास लेंगे और तीनों में अलग अलग चीज़ डालेंगे। जैसे कि एक ग्लास लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे और साथ में काऊ डंग डालेंगे एज अ मैन्योर। फिर उसके बाद ग्लास भी लेंगे, सेम अमाउंट की मिट्टी डालेंगे जितना हमने ए में डाली है, और उसमें हम क्या मिक्स कर देंगे, और उसमें यूरिया डाल देंगे, सॉइल को मिक्स कर देंगे। सॉइल देन जो लास्ट वाला जो ग्लास रहेंगे उसमें सिर्फ मिट्टी डालेंगे और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फिर हम उसको रेगुलरली 7 to 10 डेज तक पानी देते रहेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग में, या फिर 1 टाइम इन अ डे। मोस्ट ऑफ द टाइम पानी सुबह या शाम को दिया जाता है। फिर हम उसकी ग्रोथ को चेक करेंगे कि कौन सा वाला जो मग है, कौन सा वाला सीडलिंग है वो जल्दी आया है और किसकी कितनी ग्रोथ है। जब हम एक्टिविटी कर रहे थे तो उस समय हमने एक नाम सुना है, यूरिया। तो यूरिया एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता है। और फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. NPK means nitrogen, phosphorus and potassium. The use of fertilizers has helped farmer to get a better yield of crops.
such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in, in between two crops. आपको समझ आ गया होगा जो फर्टिलाइज़र है, आपको समझ आया होगा कि जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं और ये केमिकल्स के थ्रू बनते हैं। तो इसमें कैसे कैसे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन इन सब का यूज़ करने से फसल तो अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारी जो सॉइल है, सॉइल की जो उर्वरक क्षमता कहते हैं, फर्टिलिटी रहती है, वो ख़त्म हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है। और फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ करने से जो वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने सारे तरह के केमिकल्स आ जाते हैं, इसलिए वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र्स की अपेक्षा हम मैन्योर को, जो मैन्योर है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बिना केमिकल्स का होता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो डिकम्पोज होके बनता है, मतलब बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनता है। इसीलिए हम मैन्योर का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और सॉइल को हम बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, जो फील्ड है उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। जब दो फसलें लगाते हैं उसके बीच में थोड़ा सा हम गैप रखते हैं। We have another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, और इसमें क्या होता है, क्रॉप को रोटेट करके, मतलब कि पहले एक सीज़न में दाल उगा ली तो सेकंड सीज़न में चावल उगा लिया, फिर थर्ड सीज़न में कुछ और उगा लिया, चना उगा लिया या कुछ और। तो इस तरीके से जो रोटेशन है वो होता रहता है क्रॉप का। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो उसकी फर्टिलिटी कम नहीं होती है, जो उसके न्यूट्रिशंस हैं वो कम नहीं होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वन मेथड जिसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप का रोटेशन करने से सॉइल में एक फ़ायदा ये होता है कि क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो नाइट्रोजन जो रहता है वो बहुत ज़रूरी रहता है। आपने अगर प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा तो आपने एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द nodules of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. चलिए अब आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। अब क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये देखते हैं। जो फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और अगर मैन्योर को देखा जाए तो मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। ओके, और फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. Fertilizer does not provide any humus to the soil. मैंने ह्यूमस के बारे में आपको बताया था, जो ये डेड प्लांट और एनिमल्स से बना होता है ये ऑर्गेनिक होता है। एंड मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट वो प्रोवाइड कर देता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट
nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. And in manure is relatively less rich in plant nutrients. So these all are the difference between the fertilizer and manure. You should know about each and every difference between these. Now come to the advantages of manure. तो एडवांटेजेस क्या क्या है मैन्योर के? इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो ये क्या कर देता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और ये क्या करता है? मिट्टी को पोरस कर देता है। पोरस मतलब जो एकदम सॉलिड नहीं रह जाती है मिट्टी, वो एकदम भुरभुरी टाइप की रहती है। तो जिससे क्या होता है, जो उसमें एयर का वेंटिलेशन आराम से प्रॉपरली होता रहता है, जिससे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। देन इसके बाद है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो मैन्योर है वो क्या करता है? फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है। और जो मैन्योर इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब जो मैन्योर रहता है उससे क्या होता है? ये टेक्सचर जो है, टेक्सचर मतलब कलर, और वो कैसी दिखती है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, उसको वो क्या करता है? इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। मैन्योर तो आपको मालूम ही है, ये पूरा ऑर्गेनिक से बना हुआ रहता है। ऑर्गेनिक मतलब ये पूरा ऑर्गेनिक रहता है। प्लांट्स, एनिमल, लीव, काउ डंग, ये सब से मिलके जो है ये मैन्योर बना हुआ रहता है। और ये बिल्कुल हेल्दी रहता है, और ये जो नेचर के फ्रेंडली भी रहता है। इससे किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।